নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, সম্বিত পাত্র গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রেস কনফারেন্স করেন এবং সেখানে তিনি মারাত্মক কিছু অভিযোগ আনেন কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা এবং রাহুল গান্ধীর নাম উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ আনেন যে বিদেশ থেকে কোনোভাবে সেই যে দেশ বিরোধী বিভিন্ন ন্যারেটিভ সেগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে এবং সেগুলো রাহুল গান্ধী যখনই বিদেশে যান তখন তিনি এই ন্যারেটিভ গুলো তৈরি করেন এবং সেই সমস্ত কাজটা চলছে বিদেশ থেকে। এই বলে তিনি পবন খেরার নাম নেন, বিভিন্ন অল্ট নিউজ সেই সমস্ত নাম নেন এবং অন্যদিকে সুপ্রিয়া শ্রীনেট কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই প্রেস কনফারেন্সটার পাল্টা একটা প্রেস কনফারেন্স করেন এবং সেখানে তাকে প্রথমে লম্পট নেতা বলে এরকম ভাবে একদম দাগিয়ে দেন এবং তার পরবর্তীতে তিনি কিছুই জানেন না, তিনি কিছুই বোঝেন না, এই সমস্ত কথা বলেন এবং একাধিক এরকম এক্স হ্যান্ডেলের অ্যাকাউন্ট তিনি নাম বলে দেখিয়ে দেন, লিস্ট ধরে দেখিয়ে দেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট গুলো সেগুলো বিদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বিষয় হচ্ছে যে এর আগে যে টুইটার ছিল আমাদের, সেই টুইটারের পরিবর্তিত নাম হয়েছে এক্স হ্যান্ডেল, আপনারা নিশ্চয়ই সবাই ইউজও করেন, কিন্তু সেখান থেকেই একটা যে অভিযোগ সম্বিত পাত্র এনেছিলেন যে পবন খেরা থেকে শুরু করে অল্ট নিউজ তারা বিভিন্ন দেশ বিরোধী ন্যারেটিভ তৈরি করে, কিন্তু সেই যে এক্স হ্যান্ডেল গুলো সেগুলোর যে লোকেশন সেগুলো কোথা থেকে পরিচালিত হয় সেগুলো বিভিন্ন বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিচালিত হয়, এরকম অভিযোগ জানিয়েছিলেন সম্বিত পাত্র এবং সেটার পাল্টা সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়া শ্রীনেট দিয়েছেন এবং বলেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো নেতারই কি মাথায় বিশেষ কিছু নেই, এইভাবে আক্রমণ করেছেন। পরপর দুটো একদম প্রেস কনফারেন্সের কিছু কিছু বক্তব্য আপনারা শুনুন এবং আপনারা বিচার করুন আপনাদের মতন যে এই যে সম্বিত পাত্র অভিযোগটা জানিয়েছেন এবং সুপ্রিয়া শ্রীনেট তার পাল্টা দিলেন, কার গ্রহণযোগ্যতা আপনাদের কাছে বেশি? অবশ্যই এটা জানা দরকার, তার কারণ এই মুহূর্তে টেকনোলজির দুনিয়া এবং টেকনোলজির দুনিয়া প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টি তারা টেকনোলজিটাকে ব্যবহার করে, কিন্তু ব্যবহার করতে গেলে তাকে জানতে হবে বিষয়টা কিভাবে কাজ করে। আপনারা পুরো অভিযোগটা শুনুন, সম্বিত পাত্র কি অভিযোগ জানিয়েছেন, তারপরে শুনুন সুপ্রিয়া শ্রীনেটের পাল্টা কি। সমস্তটাই দেখুন, অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ। अपने आप में सनसनी पैदा करती है। आपको आज पहली बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आप शायद विश्वास न कर पाए। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा और कहां से उनके अकाउंट्स ओरिजिन करते हैं वह भी बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं बता दूं, जब आप अकाउंट में जाएंगे तो कई लोगों ने ये जो प्रोविजन था लोकेशन का बाद में चेंज किया, क्योंकि ये ऑप्शनल भी आया कि आप इसे छुपा भी सकते हैं, आप इसे लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो कई लोगों को जब मालूम पड़ा कि उनके लोकेशन को विदेश में दिखाया गया है जो उस समय वास्तविकता थी, तो उन्होंने चेंज भी किया और कुछ लोगों ने उसे ऑप्शनल में डाल दिया, अर्थात हम दिखाना नहीं चाहते हैं हम कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। ठीक उसी प्रकार प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। एक ऑल्ट न्यूज़ का मुझे दिया गया है, ऑल्ट न्यूज़ @ALT_N_EWS, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय का स्क्रीनशॉट है जिस समय यह फीचर एक्स ने दिखाया। ठीक उसी प्रकार द कैरावान @THECARAVAN INDIA, द कैरावान इंडिया, वो तो उनका
एड्रेस है, मगर अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने भी उसे चेंज करके इंडिया किया है। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे अकाउंट हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान, अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। अर्पित शर्मा, अकाउंट बेस्ड इन यूरोप। इस प्रकार से अनेकों नाम हैं जो एक्स यूज करता है, सोशल मीडिया की दुनिया में है, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को पहचानता है और इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। कई जगह पाकिस्तान को छुपाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप सटीक स्थान नहीं देके साउथ ईस्ट एशिया रीजन दे सकते हैं। तो कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है, जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे वोटर नहीं हैं, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता वियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये।